अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िएगा कुछ हिस्सा जरा इसका। Until this is I met Norbu. Norbu, the cafe was small. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Until that is I met, यहीं से है ना सर? जी। Until that is I met Norbo. The cafe was small, dark, and cavernous, with a long metal stove that ran down the middle. The walls and ceiling were weathered in sheets of multicolored plastic plastic of the stripped variety, board, broad blue, red, and white, that is made into stout voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today. The cafe had a single window beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook. I had also brought a novel with me to help pass the time. Norbo saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. You English? He inquired after he had ordered tea. I told him I was, and we struck up a conversation. I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater Wind and cheater. wind cheater and metal Rimmed rimmed spectacles of and metal rimmed spectacles of a Western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature. Assumed he was on some sort of field work. Yes and no, he said. I have come to do the Kora. My heart jumped. Norbo had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. When the time came for me to tell him what brought me to Darshan, his eyes lit up. We could be a team, he said excitedly. To academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. My my initial relief at meeting Norbo, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be very high up. He kept reminding me so tiresome to walk. He was not really a practicing Buddhist. It transpired, but he had enthusiasm, enthusiasm. and enthusiasm, and he was, of course, Tibetan. Although I had originally envisaged Envisaged. making making the trek in the company of devout believers. On reflection, I decided that perhaps Norbo would turn out to be the ideal companion. He suggested
we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the Prostrating himself. mountain. Not possible, he cried, collap- collapsing across the table in hysterical laughter. It was not his style, and anyway, his tummy was too big. ऊपर के पैराग्राफ के लास्ट लाइन में ये दिखाया था कि राइटर डॉर्चन शहर में जहाँ पे था, वहाँ सेटन सेटन वहां से जाने के बाद उसके पास कोई एक ऐसा आदमी नहीं था, या कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो अंग्रेजी जानता हो, और अंग्रेजी में सर, उसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो पेज नहीं आ रहा है। पहुंचा। जी सर। ओके, सो ऊपर के पैराग्राफ पे दिखलाया था कि डॉर्चन शहर में जहाँ पे राइटर रुके हुए थे, वहां पे अंग्रेजी जानने वाला सेटन के जाने के बाद कोई नहीं था जो उनके प्रॉब्लम को सुनता और उनकी बातें और उनके प्रॉब्लम का कोई हल निकालता। तो चूंकि वहां पहुंचे थे और कैलाश नाथ उनको जाना था अपने कोरा पूरा करने के लिए, लेकिन उनको नींद ना आने की बीमारी थी, प्लस और भी दिक्कतें थी बर्फबारी वगैरह की। उसे इत्मीनान बख्श जवाब देने के लिए कोई नहीं था। उसी को आगे लिखते हैं, अंटिल दैट इज आई मेट नॉर्बो। मैं इसी पशुपंज में था यहाँ तक कि मैं नॉर्बो से मेरी मुलाकात हुई। नॉर्बो एक दूसरा शख्स है वहीं का, तिब्बतन का। तो अंटिल दैट इज आई मेट नॉर्बो, मामला इसी पशुपंज में था यहाँ तक कि मेरी मुलाकात नॉर्बो से हो गई। कहाँ मुलाकात हुई वो आगे लिखते हैं, द कैफे वाज स्मॉल, एक कहवा खाना या जहाँ पे लोग चाय वगैरह पीते हैं, कैफे है। कैफे वाज स्मॉल, कहवा खाना छोटा सा था। डार्क, तारीख थे यानी बहुत रोशनी उसमें नहीं थी। एंड केवरनस, केवरनस का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो, बहुत सीधा ना हो, कई रुख उसमें निकले हुए हो, गुफा गुफा के तरीके से। तो केवरनस मतलब गारदार भी होता है, गारनुमा कह सकते हैं। तो छोटा सा तारीख गारनुमा था, विथ अ लॉन्ग मेटल स्टॉप दैट रैन डाउन द मिडिल, और एक लंबा सा मेटल का स्टॉप या चूल्हा था जो उस कैफे के बीचों बीच में लगा हुआ था। दैट रैन डाउन, दौड़ के दौड़ेगा क्या, वो लगा हुआ था कहाँ पे, द मिडिल, उस कहवे खाना के बीचों बीच में। द वॉल्स एंड सीलिंग वर wreathed in sheets of multicolored plastic of the stripe variety, brown, blue, red, and white, that is made into stout voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. अब क्या कहते हैं, फिर उस कैफे की जो दीवार थी, और सीलिंग का मतलब ऊपरी वाले छत को सीलिंग बोलते हैं, ऊपर से बोले तो रूफ, और अंदर वाले हिस्से को सीलिंग बोलते हैं, जिसपे पंखे वगैरह लगाते हैं उसी को सीलिंग फैन भी बोलते हैं। तो खिड़की, उस कैफे की दीवारें एंड सीलिंग और उसकी छत वर रही थे, ढके हुए थे, उस पर चढ़ा हुआ था क्या चीज, इन शीट, शीट के। अब वो शीट कैसा था, नीचे वाले पैराग्राफ में देखे, प्लास्टिक ऑफ द स्ट्रिप वैरायटी, मुख्तलिफ किस्म के पट्टेदार प्लास्टिक के शीट से दीवार और छतें ढकी हुई थी। रिथे मतलब कवर्ड, तो दीवार और छतें व रिथे ढके हुए थे। शीट, मल्टी कलर को हम बाद में तर्जुमा करेंगे, शीट्स ऑफ प्लास्टिक ऑफ द स्ट्रिप वैरायटी, मुख्तलिफ किस्म के
पट्टीदार प्लास्टिक के शीट से ढकी हुई थी। और आगे फिर क्या लिखते हैं, मल्टी कलर। और वो जो शीट थी वो शीट मुख्तलिफ रंगों के थे। वो मुख्तलिफ रंगों के थे। वो कैसे कैसे थे, कुछ ब्लू, कुछ रेड, कुछ व्हाइट। दैट इज मेड इनटू स्टाउट वोलुमिनस शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर इंडिया। वो इस तरीके से बना हुआ था, या वो जो शीट बनी हुई थी वो शीट कैसी थी, मजबूत थी। स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग, वोलुमिनियस मतलब बड़ा बड़ा, बड़ा शॉपिंग बैग ऑल ओवर, सोल्ड ऑल ओवर चाइना। तो पूरे चाइना में जो जिन शीट से लंबे और मजबूत बैग बनाए जाते हैं, उसी शीट का वो वो शीट भी थी। तो वो शीट किस चीज के बनी हुई थी, वो लंबे और मजबूत बैग जो चाइना में बनते हैं उसी की ये शीट भी बनी हुई। तो मेड इनटू स्टाउट, वो बना हुआ था मजबूत और लंबे शॉपिंग बैग का, जो सोल्ड ऑल ओवर इन चाइना, जो पूरे चाइना में बिका जाता है, बेचा जाता है। और उसके अलावा इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, और एशिया के दूसरे ममालिक, एशिया और ऐसे ही यूरोप के दूसरे ममालिक में भी इस तरह के बैग बेचे जाते हैं। As such, plastic must rate as one of the China's most successful export along the Silk Road today. और कहते हैं मामला यहाँ तक है, और एज सच, और इसी तरीके से ये जो प्लास्टिक का कारोबार था, ये प्लास्टिक का कारोबार सिल्क रोड में चाइना का सबसे ज्यादा कामयाब बरामद करने वाली चीजों में से एक था। एज सच, इस तरीके से प्लास्टिक का जो ये सामान था, ये प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ, मस्ट रेट का मतलब अगर उसकी आप वैल्यू निकालें, उसकी कद्र करें, तो कहते हैं इस तरीके से प्लास्टिक उस वक्त सिल्क रोड में सब चाइना का सबसे ज्यादा कामयाब तरीन एक्सपोर्ट किए जाने वाले अशिया में से एक था। The cafe had a single window beside which I had taken up a position so that I could see the pages of my notebooks. कहते कैफे हैड अ सिंगल विंडो, उस कैफे में एक सिर्फ विंडो, एक खिड़की थी, जिसके बगल में आई हैड टेकन पोजीशन, मैं बैठ गया था, मैंने एक जगह ले ली थी। सो दैट, ताकि आई कुड सी द पेजेस ऑफ माय नोटबुक, मैं अपने नोटबुक के सफात को देख सकूं। चूंकि कैफे में तारीकी थी, इसलिए विंडो के बगल में बैठ गया था। आई हैड आल्सो brought a novel with me to help pass the time, और वक्त की गुजारे के लिए मैं अपने साथ एक नॉवेल भी रखा था। तो आई हैड आल्सो brought a novel, मैंने एक नॉवेल भी लाया था अपने साथ, टू हेल्प पास द टाइम, टाइम की गुजारे के लिए। Norbo saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my reading table. कहते हैं नॉर्बो ने मेरी किताब को देखा जब वो अंदर आया, एंड आस्क्ड विद अ जेस्टर, जेस्टर मतलब इशारा होता है, और इशारे से मुझसे पूछा इफ ही कुड सिट अपोजिट मी, क्या मेरे मध्य मुकाबिल, मेरे गंदे, रेक्टी टेबल का मतलब, रेक्टी मतलब खराब, मुसीदा, तो मेरे बोसीदा टेबल पर मेरे मध्य मुकाबिल क्या वो बैठ सकता है। यू इंग्लिश, आप इंग्लिश में है, यानी आप इंग्लिश से हैं, अंग्रेज हैं, अंग्रेजी आपको आती है। ही इंक्वायर्ड, उसने मुझसे पूछा। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, उसने मुझसे पूछा, ही आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, चाय की ऑर्डर देने के बाद। आई टोल्ड हिम आई वाज, हाँ मैं अंग्रेज हूँ, या मैं, मुझे अंग्रेजी आती है, या मैं इंग्लिश हूँ। इंग्लिश हूँ का मतलब मैं ऐसे मुल्क से हूँ जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, और फिर हम लोगों ने गुफ्तगू का आगाज कर दिया। स्ट्रक अप, इनिशिएटेड, स्टार्टेड, अ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू। आई डिडंट थिंक ही वाज फ्रॉम दोज पार्ट्स। अब ये ठहरा हुआ कहाँ पे था, कहाँ का था, जगह का नाम क्या था, दर्शन। ओके, ऊपर के पैराग्राफ में दिखलाया था कि जिस इलाके में था वो इलाका दर्शन का था। तो पता है, डिडंट थिंक ही वाज फ्रॉम दोज पार्ट्स, मेरे ख्याल में ये जो
बंदा था, ये क्या नाम, नोर्बो, ये नोर्बो इन इस पार्ट्स का नहीं था, ये दर्जन का नहीं था। बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर। विंड चीटर का मतलब होता है ऐसा कोट जो सर्दी से बचावे। तो ठंड प्रूफ या विंटर प्रूफ कोट पहने हुआ था। एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टेकल्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, और मगरबी स्टाइल का मेटल का बना हुआ स्पेक्टेकल या चश्मा पहने हुआ था। तो ही वॉज वेयरिंग, हो चुके वो पहने हुआ था क्या, विंड चीटर, सर्द बताने वाले या विंटर प्रूफ कोट, और वेस्टर्न स्टाइल का मेटल का बना हुआ चश्मा। ही वॉज तिब्बतन, वो तिब्बत का था। ही टोल्ड मी, उसने बताया, but work in Beijing at a Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature। लेकिन वो बीजिंग में, चाइना मुल्क के अंदर जो बीजिंग शहर है, उस बीजिंग में काम करता है। तो कहता है चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में वो काम करता है। आई एज्यूम ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। तो वहां पे वो काम करता है, लेकिन मैं सोचा कि शायद कि वो किसी फील्ड वर्क में निकला है, वो फील्ड वर्क के काम के लिए ये बाहर निकला हुआ है। यस आई नो, हाँ या नहीं, ही सेड, उसने कहा। आई हैव कम टू, यानी शशोपंज में जवाब दिया। ही सेड आई हैव कम टू डू द कोरा। उसने कहा कि मैं यहाँ जो आया हूँ कोरा करने के लिए आया हूँ। तो कोरा उसे भी करना था, इसे, राइटर को। तो राइटर को खुद कोरा करना था, और उसके साथ साथ जो ये बंदा आया, ये नोर्बो भी कहता है कि मैं यहाँ जो आया हूँ कोरा करने के लिए आया हूँ। जब ये बात सुने तो कहता माई हार्ट जंप, मेरा दिल तो कूद गया। मेरा दिल कूदने का मतलब क्या है, वो मेरा दिल खुश हो गया, मैं हैरत में पड़ गया। नोर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. अच्छा, कोरा करने के लिए आया था, और आगे नॉर्बो जो है ये एकेडमिक पेपर लिख रहे थे। यानी एकेडमिक पेपर का मतलब रिपोर्ट वगैरह लिख रहे थे, किसके बारे में, अबाउट कैलाश कोरा, कैलाश के कोरा के बारे में, एंड इट इम्पोर्टेंस, और उसकी अहमियत के बारे में। कहाँ पे लिख रहे थे, इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध के अदबी, बहुत सारे मुख्तलिफ बुद्ध के अदबी सरगर्मी में, इन वेरियस वर्क्स, बहुत सारे मुख्तलिफ कामों में, किसके, ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बहुत सारे कामों में, कैलाश कोरा और उसके इम्पोर्टेंस पे वो रिपोर्टें लिख रहे थे। एकेडमिक पेपर लिखने का मतलब रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, लिख रहे थे, फॉर मेनी ईयर, बहुत सालों से। ही टोल्ड मी, उन्होंने बताया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट सेल्फ। कोरा के बारे में उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ है और लिख भी रहे हैं, लेकिन वो खुद एक्चुअली में या सचमुच में खुद वो कोरा नहीं किया है। यानी कोरा उन्हें करना बाकी है, कोरा भी किया नहीं है, बल्कि वो कोरा की इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में लिख रहे हैं। अंदरवा करो आप। He told me, but he had never actually done it himself, लेकिन खुद कोरा उन्होंने नहीं किया था। When the time came for me to tell him what brought me to Darshan, his eyes light up। और जब वो वक्त आया, मेरे लिए जब वो वक्त आया कि जो उसको मैं बताऊं कि मुझे को दर्शन आने की वजह क्या है, तो चूंकि अभी नॉर्मल ही बातें कर रहा था, तो कहता है when the time came for me to tell what brought me to दर्शन, his eyes light up। लेकिन जब उसने उसने मुझे बताया कि मेरी दर्शन आने की वजह क्या है, जब ये बातें उसने सुनी तो हिज आईज लाइट अप, उसकी आंखें चमक गई, उसकी आंखों में खुशी आ गई। वी कुड बी अ टीम, फिर तो हम लोग एक टीम में शामिल हो सकते हैं, यानी हम दोनों मिल करके एक टीम बना सकते हैं। ही सेड एक्साइटेडली, वो है एक्साइटेड मतलब जोश में आकर के कहा, जोश भर गया, चूंकि वो खुद एक कोरा करने के लिए आया था, और ये खुद एक दूसरा बंदा भी एक कोरा का साथी मिल गया। तो ही सेड एक्साइटेडली, का है भैया,
पढ़ावत है। He said excitedly, वो एक्साइट होकर के कहा, जोश में कहा। Two academic who have escaped from the library, perhaps my positive thinking strategy was working after all. अब कहते हैं मैं भी एक एकेडमिक पर्सन था, दूसरा बंदा भी एकेडमिक पर्सन आ गया, तो कहते हैं दो एकेडमिक पर्सन हु हैव एस्केप्ड, जो बाहर आए हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी से, परहैप्स माय पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग आफ्टर ऑल। ऊपर में कहा था कि मैं मुस्बत अंदाज में सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलूंगा, फिर कैसे मैं पूरा कर पाऊंगा। तो कहता है शायद के मेरा पॉजिटिव थिंकिंग, एक मुस्बत अंदाज से सोचने का जो रवैया था, जो तरीका था, वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, बहरहाल अब कामयाब हो रहा। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. My initial relief at meeting Norbu, नॉर्बो से मुलाकात के बाद जो हमें शुरू में जो हमको सुकून मिला था, वो नॉर्बो कहाँ रहा था, वो बीच में लगा दिया उन्होंने। वो आज आल्सो स्टेइंग एट द गेस्ट हाउस, जो नॉर्बो भी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। तो जो नॉर्बो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, उनसे मुलाकात के वक्त जो हमारा हमारा जो इब्तदाई सुकून मिला, उस इब्तदाई सुकून में या शुरू के सुकून वाज टेम्पर्ड, उसमें मुदाखलत हो गई, वो सुकून गारत हो गई। किससे गारत हो गई? बाय द रियलाइजेशन, ये एहसास करके, ये शऊर में आने के बाद, दैट ही वाज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड एज आई वाज फॉर द पिलग्रिमेज। ये जान करके या ये एहसास करके कि मैं भी तकरीबन ज़ियारत के लिए या कोरा के लिए ऐसी नाअहल हूँ जितना कि वो। एज इल इक्विप्ड मतलब साजो सामान के साथ, पूरे साजो सामान के साथ तैयार ना होना। इक्विप का मतलब साजो सामान, इल इक्विप का मतलब मुनासिब साजो सामान के साथ ना हो। तो बाय द रियलाइजेशन, ये महसूस करके, दैट ही वाज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड, कि वो तकरीबन वैसे ही गैर मुनासिब है जैसे कि मैं गैर मुनासिब हूँ, फॉर द पिलग्रिमेज, उस ज़ियारत के लिए या कोरा करने के लिए। गैर मुनासिब का मतलब ये है कि जो चीजें चाहिए वहां पे, उन तमाम चीजों के साथ मैं तैयार नहीं हूँ, और मैं भी तैयार नहीं हूँ और उसकी भी तैयारी नहीं। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. कहते हैं, और मजीद वो कहता चला गया कि वो कितना मोटा है, और मोटा होने के साथ साथ हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, और वहां जाना कितना मुश्किल है, क्योंकि वहां जो जाना था कैलाशनाथ पहाड़ पे जाना था, और वो भी पैदल जाना था। तो एक मोटे आदमी को एक पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल होगा। तो उसका था वेरी हाई अप, ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, सो टायरसम टू वॉक, जितनी बुलंदी होगी उतना ही ज्यादा चलने में थकावट होगी। वेरी हाई अप, सो टायरसम टू वॉक, जिस कदर बुलंदी होगी उतना ही चलने में थकावट होगी। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो मुझको याद दिलाता रहा या वो मुझे कहता गया। He wasn't really a practicing Buddhist. वो सचमुच में एक पक्का बुद्धिस्ट नहीं था। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहते हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब सच्चा मुस्लिम नहीं है। उसी तरीके से प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट का मतलब सच्चा बुद्धिस्ट नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड, ऐसा के जाहिर हुआ, बट ही हैड इंथियोजिज्म, लेकिन जज्बाती बहुत था, हौसला उसके अंदर बहुत ज्यादा था। एंड ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतन, और यकीनन वो तिब्बत का था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of Diod's believers, अगरचे ओरिजिनली शुरू में, envisaged का मतलब थॉट, प्लान, अगरचे शुरू में मैंने प्लान बनाया था। मेकिंग द ट्रेक, या ट्रेक का मतलब कोरा करने की, इन द कंपनी ऑफ डिओड बिलीवर्स, ऐ सच्चे पक्के बुद्धिस्टों के साथ। डिओट का मतलब जो अपने आप को जानेसार कर दे, कुर्बान कर दे। तो डिओट बिलीवर्स का मतलब जैसे पक्के मुसलमान कर रहे हैं, उसी डिओट बिलीवर, बुद्धिस्ट की बात चल रही है, इसलिए सच्चे पक्के बुद्धिस्ट की सोबत में मैं कोरा करना चाहता था, या कोरा करने का शुरू में मैंने इरादा बनाया था।
ऑन रिफ्लेक्शन, लेकिन दोबारा गौर करने पे। ऑन रिफ्लेक्शन मतलब थिंकिंग अगेन, ऑन थिंकिंग अगेन, दोबारा सोचने पे। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया, दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपनी, शायद के ये नॉर्बू हमारे लिए सबसे एक मिसाली साथी साबित होगा। ही सजेस्टेड, और उसने मशवरा दिया, कौन, नॉर्बू ने, कि वी हायर सम याक, याक का मतलब घोड़ा गाड़ी कह लें या बैलगाड़ी कह लें, तो हमें कुछ घोड़ा गाड़ी याक या घोड़े गाड़ी को किराए पे लेना चाहिए, इसलिए टू कैरी अवर लगेज, अपने सामानों को ले जाने के लिए, विच आई इंटरप्रेटेड एज अ गुड साइन, जिसे जिसको या जिस चीज को या जिस मशवरे को मैंने भी एक अच्छी बात समझी। इंटरप्टेड का मतलब तशरीह करना, तो यहाँ पे कर रहे हैं आप थॉट या कंसीडर, जिसको मैंने भी अ गुड साइन, एक अच्छी बात समझी, ये अच्छा मशवरा समझा। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और कहते हैं और नीज, वो पहाड़ों के ऊपर खुद चला करके अपने आप को थकाने का उसका बिल्कुल इरादा नहीं था। ही हैड नो इंटेंशन, उसका कोई इरादा नहीं था, और प्रोस्ट्रेटिंग, अपने आप को थकाने का, ऑल राउंड द माउंटेन, उन पहाड़ों पर चढ़ करके। तो खुद से वो चढ़ना नहीं चाहता था किस तरह का सामान लेकर के जाए, इसलिए कहा कि गाड़ी कर ली जाए। नॉट पॉसिबल, और वहां इसके बगैर पॉसिबल भी नहीं है। ही क्राइड, वो चीख कर कहा, कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल, टेबल के ऊपर अपने हाथों को फैलाते हुए, इन हिस्ट्रिकल लाफ्टर, और एक तारीखी तौर पर हंसते हुए, यानी जोरदार तौर से हंसते हुए। इट वाजंट हिज स्टाइल, तो उसकी इस तरह की स्टाइल तो नहीं थी। इन एनी वे हिज टमी वाज टू बिग, और उसका जो पेट भी जो था, वो पेट भी बड़ा था, मोटा भी था, पेट भी बड़ा था, तो चलना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए लास्ट के पैराग्राफ में तय ये किया कि हमें कुछ याक को किराए पे लेना चाहिए, अपना सामान वगैरह उस पर रखें, और इस तरीके से हम दोनों पूरा पूरा कर सकते। तो ये पूरा लेसन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। आने वाले कल के दिन या परसों वाली तारीख में इसी लेसन में एक पोयम है, इस पोयम को पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंड पेपर के हिस्से हैं, कुछ ट्रांसलेशन है, कुछ और एक्सरसाइज है ग्रामर के, उनको हम इसके बाद कर लें। तो इसको आप रिपीट करें। समझ में आया भाई लोग? जी सर। ओके, सो वर्ड मीनिंग कुछ मैं देता हूँ आपको, इसको आप रिपीट करें। ओके। कुछ कहना है, डिस्कनेक्ट करें? हो गया सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज।